Welcome, my dear students of grade 7th. We are doing the fourth chapter of history, that is the Mughal Empire. And today we are going to study about the great ruler of Mughal Empire, that is Akbar. Akbar ruled from 1556 to 1605 CE. Timeline of Akbar. Akbar was crowned emperor in 1556 after defeating the Hindu king Hemu in the second battle of Panipat. That is 1556 में उसने हिंदू किंग हेमू को सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट किया था। उसके बाद वो दिल्ली का राजा बना था। अकबर मैरिड जोधाबाई 1562, abolished pilgrim tax 1562, abolished jizya 1564. Akbar introduced mansabdari system 1574 CE. Akbar divided the empire 1580 CE, established Deen-e-Ilahi 1581, and Akbar died in 1605 CE. This is the timeline of Akbar. Now we study about Akbar in detail. Jalaluddin Muhammad Akbar was also known as Shahanshah Akbar Azam or Akbar the Great. The real name of Akbar was Jalaluddin Muhammad Akbar और उसको किस नाम से जाना जाता है? शहनशाह अकबर आजम और अकबर द ग्रेट. He was born on 15 October 1542 CE in Umerkot when his father Himayu was dethroned and helpless. यानी कि जब उसका बर्थ हुआ था उस टाइम हिमायू राजा नहीं था. 1540 में वो इंडिया से भाग चुका था, सिंध चला गया था after defeating from the Sher Shah Suri. He was crowned as the emperor in the 1556 CE at the age of 13 years. अकबर सिर्फ 13 years था जब वो राजा बना. As he was minor, his regal patron and mentor Bairam Khan looked after his kingdom till he attained the age of 18 years. क्योंकि अभी वो छोटी एज का था तो उसको उसके मेंटोर था बैरम खान, जिसने उसकी किंगडम की लुक आफ्टर की जब तक उसकी एज 18 इयर्स की नहीं होगी. नाउ क्वालिटीज़ एंड द स्किल्स. अकबर वाज ए ग्रेट वॉरियर एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर. Mughal Empire covered most of the northern and the central India. He powerfully eliminated all the rebellions after taking control of the kingdom in his hand by not only uprooting the descendants of Sher Shah Suri but also defeating the newly self-declared Hindu king Hemu, who was the Wazir of Suri dynasty in the second battle of Panipat 1516 CE. He took nearly 2 decades to consolidate his power and extend his empire far towards the Deccan under his direct control. He also took steps to end off internal conflicts in his kingdom through diplomatic skills and organizational capabilities. अकबर एक ग्रेट योद्धा था और एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर था और उसने 1605 तक नॉर्थन पार्ट इंडिया का पूरा नॉर्थन पार्ट और सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जो आजकल पार्ट हैं वो वहाँ तक पूरा कंट्रोल कर लिया था. और उसने शेर शाह सूरी के जो भी डिसेंडेंट्स थे उनको डिफीट किया और साथ में हिंदू किंग हेमू जो उसका सूर डायनेस्टी जो सूरी डायनेस्टी थी उसका वज़ीर था, उसको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट करके दिल्ली पर पूरा कंट्रोल कर लिया. और डेक्कन एरिया मीन जो साउथ का एरिया है इंडिया के वहाँ पर कंट्रोल करने में उसको 2 डिकेड्स मीन्स लगभग 20 साल लगे. अकबर ने अपनी डिप्लोमेटिक स्किल और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी मीन्स अपनी चतुराई से उसने अपनी किंगडम के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट से जो भी डिस्प्यूट्स होते थे उन्हें बड़े अच्छे ढंग से हैंडल किया और अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया. नाउ अकबर्स राजपूत पॉलिसी. Akbar was the first Muslim ruler who realized that there could be no permanent Muslim empire without the cooperation of the Rajput. एक पहला मुस्लिम रूलर था जिसने ये रियलाइज़ किया
कि अगर हम इंडिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं और लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर राजपूत किंग हैं उनकी कोऑपरेशन चाहिए. They had to be peacefully won over. Beside, other features of the new Rajput policy of Akbar have won him a unique place in the history. He made the marriage alliances with Rajput clans by marrying Jodhabai, daughter of Raja Barmal of Jaipur in 1562. He displayed his secular policy towards the Rajput. The marriage secured him the powerful support of Rajput rulers throughout his reign. उसने 1562 में जोधाबाई जो जयपुर के राजा भरमाल की बेटी थी उसके साथ मैरिज की और अपनी इस नई पॉलिसी को अंजाम दिया. इस मैरिज के बाद उसको राजपूत रूलर्स की सपोर्ट मिल गई. He gave important posts to the Rajput and other Hindus in his kingdom. सेकेंडली उसने अपने राजपूत पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो राजपूत हिंदूज थे उनको अपने किंगडम में स्पेशल प्लेस स्पेशल पोस्ट देने का बारे में डिसाइड किया. फॉर एग्जांपल राजा टोडरमल वाज द दीवान इन द अकबर्स कोर्ट. राजा बीरबल वाज द वजीर. Raja Man Singh was the most trusted general of Akbar. These were some of the Rajput who were provided high position in Akbar's courts. Means all these were Hindu who get the high position in Akbar's court. It was also the part of his new Rajput policy. He honored the Rajput kings even after defeating them and did not interfere in their internal affairs. वो राजपूत किंग को अगर बैटल में हरा भी देता था तो उसके बावजूद उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता था. एंड राजपूत रूलर्स को अलाउ करता था कि वे अपनी किंगडम पर रूल कर सकते हैं एज वतन जागीर्स एंड वर गारंटीड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ओनर. उन्हें उनकी लाइफ की उनकी प्रॉपर्टी की उनकी रिस्पेक्ट की पूरी गारंटी देता था कि साथ कोई भी गलत बिहेव नहीं किया जाएगा. नेक्स्ट अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. इन 1580 CE अकबर डिवाइड द होल मुगल एम्पायर इनटू 12 प्रोविंसेस विच वर कॉल्ड सूबास. उसने पूरी एम्पायर को 12 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था जिन्हें हम प्रोविंसेस कहते हैं. जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स में हमने इंडिया को डिवाइड किया हुआ है. इसी तरह अकबर ने भी अपना शासन करने के लिए इंडिया को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया था विच वर कॉल्ड सूबास. ईच सूबा वाज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सरकार्स और सूबा यानी कि प्रोविंसेस आगे भी डिवाइडेड थी जिन्हें हम सरकार बोलते थे. एंड देन फर्दर डिवाइडेड इनटू पैरागनस एंड महल्स और विलेज. यानी हर लेवल पर उसने अपनी किंगडम को डिवाइड कर दिया था फॉर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. After the Deccan conquest, 3 new सूबास बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर वर एडिड. डेक्कन जब उसने डेक्कन एरिया मीन्स साउथ इंडिया पर कंट्रोल किया तो 3 नए सूबास उसकी किंगडम में ऐड हुए दैट इज़ बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर. द एम्परर वाज हेड ऑफ द एम्पायर और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में एम्परर मीन्स जो राजा था वो पूरी एम्पायर का हेड था. ही हैड ऑल द सोवरियन पावर. उसके पास सभी इंडिपेंडेंट पावर्स थी वह कोई भी डिसीजन ले सकता था. ही वॉज हेल्प बाय हिज कैबिनेट मेंबर्स. उसकी हेल्प करने के लिए अलग अलग कैबिनेट मेंबर्स मींस मिनिस्टर्स होते थे. जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर की या चीफ मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है लाइक दैट. लाइक वजीर प्राइम मिनिस्टर था, दीवान रेवेन्यू मिनिस्टर, मिस्टर मीर बख्श को पे मास्टर ऑफ द आर्मी. आर्मी का हेड होता था मीर बख्श और काजी हाईएस्ट जुडिशियल हेड जो कोर्ट थे यानी न्याय करने के लिए काजी था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द अकबर. अकबर फॉलोड a policy of religious tolerance which was essential condition for nation building. अकबर ने जो पॉलिसी अपनाई थी दैट वाज रिलीजियस टॉलरेंस की कि सभी धर्मों की वो रिस्पेक्ट करेगा एंड इट इज़ द एसेंशियल कंडीशन फॉर नेशन बिल्डिंग. और किसी भी नेशन के लिए ये सबसे पहली कंडीशन होती है. ही आल्सो बिलीव दैट दे शुड बी अलाउड परफेक्ट फ्रीडम इन मैटर ऑफ फेथ एंड वर्शिप.
वो ऐसा विश्वास करता था कि सभी लोगों को अपना धर्म कोई भी अपनाने के लिए, उसकी वार्शिप करने के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए। हैंस इन 1562 से ही अबॉलिश्ड द पिलग्रिम टैक्स। पिलग्रिम टैक्स मतलब होता है जैसे हिंदू लोग यात्रा पर जाते थे, जब मुस्लिम जाते थे तो उन पर टैक्स लगाया जाता था, दैट इज़ नोन एज पिलग्रिम टैक्स। एंड इन 1564 से ही अबॉलिश द टोल टैक्स और जीजिया। जीजिया क्या था? एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम, जो लोग मुस्लिम नहीं थे, उनके ऊपर लगाया गया था टैक्स। इस टैक्स को भी उसने फिनिश कर दिया। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स ऑफ द पीपल। और सभी लोगों के जो रिलीजियस और सोशल कस्टम थे, यानी जो हिंदू लोग थे, जो भी धर्म को मानते थे, जहाँ रीति रिवाज थे, उनमें भी इंटरेस्ट लेता। He celebrated Hindu festivals such as Diwali, Holi, Basant Panchami, etc. along with the Parsi festival of Naro in his court. वे सभी फेस्टिवल, दिवाली, हिंदुओं के फेस्टिवल, बसंत पंचमी एंड पारसी फेस्टिवल को अपनी कोर्ट में मन आता था। ही अपॉइंटेड हिंदू टू पब्लिक सर्विस एंड इम्पोर्टेंट पोजीशन। उन्हें हिंदू लोगों को पब्लिक सर्विस और इम्पोर्टेंट पोजीशन दी हुई थी अपनी कोर्ट में, लाइक राजा मान सिंह सर्व एज द गवर्नर ऑफ काबुल, राजा टोडरमल, बीरबल, अदर राजपूत हेल्ड पोजीशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। ये सब उसकी कोर्ट में मेंबर्स थे। बाय हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस अकबर वन द हार्ट्स ऑफ हिज हिंदू सब्जेक्ट एज वेल एज अर्न देयर लॉयल्टी। इसी पॉलिसी के कारण उसने हिंदू लोगों का दिल भी जीत लिया। दिस सेकुलरिज्म वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। धर्मनिरपेक्षता यानी किसी धर्म को नहीं मानना, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना ही उसकी सबसे बड़ी पॉलिसी थी। दिस लेड हिम टू डेवलप द आइडिया ऑफ सुह-ए-कुल और यूनिवर्सल पीस, विच वॉज सेकुलर इन आउटलुक एंड डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। इसी से पॉलिसी से एक नया आइडिया आया, दैट इज़ नोन एज सुह-ए-कुल और यूनिवर्सल पीस, यानी पूरे वर्ल्ड में इससे शांति रहेगी और किसी भी धर्म के लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। ही वांटेड टू यूनाइट द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड बिल्ड अ नेशन स्टेट। और अकबर एक ऐसा नेशन बिल्ड करना चाहता था जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, और इसके लिए उसने एक नया धर्म भी शुरू किया था, दैट इज़ नोन एज दीन इलाही। दीन इलाही। अ ग्रेट चेंज केम इन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर in 1581 CE. Akbar built a spacious hall in his new capital Fatehpur Sikri, known as Ibadat Khana, where he could hold religious and philosophical discussion. उसने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया था फतेहपुर सिकरी में, किसके लिए? रिलीजियस मैटर और फिलोसफिकल मैटर के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। He invited scholars of all religions, Hindu, Jain, Christian and Islam to take part in this discussion. और इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वे सभी रिलीजन्स के स्कॉलर को इनवाइट करता था। The scholars exchanged their views freely. Akbar concluded that the fundamentals of all religions were same. He made up his mind to act boldly. उसने जब सब की डिस्कशन सुनी और उसने ये रियलाइज़ किया कि सभी रिलीजन्स के जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, वो सेम हैं, तो उसने एक नया डिसीजन लिया। ही इंक्लूडेड द एथिक्स ऑफ ऑल दीज रिलीजन्स एंड एस्टेब्लिश ए न्यू फेथ ऑफ रिलीजियस ऑर्डर नोन एज दीन इलाही। इन सभी एथिक्स को मिलाकर उसने एक नया रिलीजन तैयार किया, दैट इज़ नोन एज दीन इलाही। इट वॉज मोर और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और ब्रदरहुड और ए कोड ऑफ कंडक्ट। ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन थी, मीन्स भाईचारे की फीलिंग थी, और इसमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट थे, कुछ रूल्स थे जो सबको मानने थे। ही हैड नो होली बुक्स, इसमें कोई होली बुक्स, कोई धार्मिक किताब नहीं थी। नो डोगमास एंड प्रैक्टिकली नो रिलीजियस बिलीव्स, ना ही कोई ऐसे रीति रिवाज ट्रेडिशन थे जो सबको मानने के लिए ज़बरदस्ती होती थी। द फॉलोअर्स आर दीन इलाही बिलीव्ड इन वन गॉड। अकबर डिड नॉट कंपेल एनीबडी टू ज्वाइन हिज रिलीजन। और दीन इलाही को विश्वास रखने वाले एक ही भगवान में विश्वास रखते थे, मीन्स उनके लिए सब धर्म के लोग एक जैसे थे। अकबर किसी को कंपेल नहीं करता था कि कोई उस धर्म को माने,
सबकी अपनी इच्छा थी, अगर वो दीन इलाही को मानना चाहते तो मानेंगे, अगर वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करना चाहते तो वो भी कर सकते थे। इनके अलावा अकबर एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर भी था। उसने बहुत सी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स, पैलेसेस और गार्डन्स बनवाए, लाइक बुलंद दरवाजा एंड हुमायूंस टॉम्ब that were built by Akbar. And Akbar's court was also well known for the presence of 9 illustrious men known as collectively नवरत्न और 9 gems. अकबर के दरबार में 9 लोग ऐसे थे जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे, जिन्होंने अपनी मुगल एम्पायर को अलग अलग सेवाएं दी। जैसे बीरबल जो उसका वज़ीर था, जिसके आजकल भी हम उसके किस्से अभी याद करते हैं, अकबर और बीरबल के, कि किस प्रकार वो चालाकी से और हंसी मजाक में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दे देता था। मियाँ तानसेन, फेमस म्यूजिशियन एंड सिंगर, सूरदास जी, they are the well known person of that time. And the major sources from where we get the information about Akbar's life, that is Akbarnama and Aine Akbari. These two books give us the information about Akbar, and these are written by Abul Fazl. Akbarnama tell us about the Akbar's ancestors, means जो उसके पूर्वज थे, उसके फादर, ग्रैंडफादर, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है। एंड अबाउट द अकबर्स रियान, कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम कैसी थी। आईने अकबरी अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रेवेन्यू सिस्टम, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एंड दीज बुक्स वर रिटन बाय अबुल फजल। दैट्स ऑल अबाउट Akbar. I hope all of you understand about this. In the next video, we will study about next Mughal ruler, that is Jahangir, and about Shah Jahan. Thank you for watching the video.